मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہو اور فہم دیا ہو اور نبوت عطا فرمائی ہو، پھر وہ کہے لوگوں سے کہ ہو جاؤ میرے بندے، بن جاؤ میرے بندے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور لیکن وہ یہ کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو اور بوجہ اس کے کہ تم خود کتاب کو پڑھتے ہو، اور نہیں یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو. کیا وہ تم کو کفر کی بات بتلائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے اور آیت نمبر 80 ہے. دو آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. جو سبق ہے وہ اس بات کو لے کر ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے کسی کو کتاب دی ہو، فہم دیا ہو، نبوت دی ہو، اور پھر وہ یہ کہے کہ ہو جاؤ میرے بندے. مطلب یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شان نزول میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ نجران کے وہ عیسائی اور یہود کے جو علماء مدینہ طیبہ آئے ہوئے تھے مذہبی گفتگو کرنے کے لیے، تو ان میں سے ایک یہودی ابو رافع نے یہ کہا ایک یہودی عالم نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حضرت نصارہ کی طرح جس طرح نصارہ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پرستش کی اور ان کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، کیا آپ یہ ہم سے چاہتے ہیں؟ یہ سوال ڈالا ہے ان کے سامنے. کنہوں نے؟ یہود نے. یعنی آپ کی یہ تمنا ہے ہم سے کہ ہم آپ کی پوجا پاٹ کریں، آپ کے سامنے سجدہ کریں، یا کیا آپ کی یہ تمنا ہے؟ اسی طریقے سے نصارہ نے یہ بات کہی کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا قرار دے کر کے اور خدا کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے کر کے انہوں نے اس کی سب کچھ مانا تھا، آپ کی یہ تمنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آج کے اس سبق میں جواب دیا ہے ان لوگوں کو
बल्कि उन लोगों को नहीं, दुनिया में हर इंसान जो इंसान की पूजा पाठ कर रहा है, इंसान को माबूद बना रखा है, अपना खुदा बना रखा है, मन्नतें मानी जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है, उन सब से कुरान करीम का चैलेंज है कि क्या किसी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला किताब दे, उसको समझ अता फरमाए, उसको नबूवत दे, तो क्या उससे यह हो सकता है कि वो ये कह दे लोगों को कि हो जाओ मेरे बंदे, यानी मेरी इबादत करो? यह हो सकता है? समझिए, जिस तरीके से दुनिया के अंदर कोई हुकूमत अगर किसी को अपने काम के लिए मुकर्रर करती है, दुनिया की हुकूमत, तो उसमें दो बातें देखती है वो हुकूमत उस आदमी को अपने काम पर मामूर करने के लिए दो बातें देखती है। नंबर एक, वो बादशाह, वो हुकूमत ये देखेगी कि जिस आदमी को हम कोई जिम्मेदारी, कोई ओहदा दे रहे हैं, तो इसको हुकूमत की पॉलिसी समझना भी जरूरी है, और हम हुकूमत की पॉलिसी समझने के बाद हुकूमत से जो तलब करना है, यानी लोगों को हुकूमत के ताबे जो बनाना है या हुकूमत के काम को अंजाम जो देना है, क्या उसकी जिम्मेदारी, उसकी सलाहियत ये आदमी रखता है कि नहीं रखता है? एक तो ये बात देखती है। दूसरी बात ये देखती है कि जो इसको हुक्म दिए जाएंगे, क्या ये उन हुक्म को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, और उन हुक्म को लोगों को उन हुक्म पर लाने के लिए कितनी जिम्मेदारी निभा सकता है। अगर हुकूमत इन दो चीजों में अपने सामने जिसको जिम्मेदारी दे रही है हुकूमत, अगर इन चीज से वाकिफ हो जाती है कि ये जिम्मेदारी संभाल लेगा, तो उसको जिम्मेदारी दे दी जाती है और उसको ओहदा दे दिया जाता है, उसको ओहदा दे दिया जाता है। तो दुनिया के अंदर के बादशाह जब दो चीजें देख रहे हैं, किसी को ओहदा देने के लिए, किसी को जिम्मेदारी देखने के लिए, और वो बादशाहों का बादशाह, क्या ख्याल है मेरा और आपका उस बादशाहों के बादशाह के बारे में कि जो नबी बनाकर भेज रहा है, जिसको किताब दे रहा है, जिसको जिम्मेदारी दे रहा है, उम्मत जिसको नबी बनाकर भेज रहा है, क्या वो इन चीजों से वाकिफ नहीं है? मुमकिन है दुनिया की हुकूमत अगर किसी को अपनी जिम्मेदारी दे रही है, मुमकिन है कि वो उसके अंदर की वो सलाहियत न जान सके। मुमकिन है दुनिया की हुकूमत के बारे में तो आप इम्कान कर सकते हो कि हमारे खिलाफ भी चल सकता है, हमारी बगावत भी कर सकता है, लेकिन उस बादशाह के, वो बादशाह यानी अल्लाह जिसको नबूवत का ताज पहना रहा है, जिसको शरीयत दे रहा है, उसके बारे में ये नामुमकिन है कि वो उसको जिम्मेदारी दे के जो उसके खिलाफ चले। ये नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी इंसान के लिए जिसको अल्लाह किताब दे रहे हो, हुकूमत दे रहे हो, और जिसको अल्लाह नबूवत दे रहे हो, क्या वो ये कहेगा कि मेरे बंदे बन जाओ? क्या बात करते हो तुम? क्या सवाल करते हो यहूदियों? तुम सोचे समझे आदमी, किताब पढ़ने वाले, तौरात को पढ़ने वाले, इंजील को पढ़ने वाले, भला कोई सवाल है तुम्हारा ये? अरे अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बनाया है, आखिरी नबी बनाया है, नबूवत दी है, और तुम क्या ख्याल करते हो कि ये इनकी जबान से ये बात हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए कलाम पाक ने दो टोक ऐलान किया, चैलेंज किया, मा कान अली बशरीन, किसी बशर के से ये बात नहीं हो सकती है, अय्युतिहुल्लाहुल किताब, ये कि अल्लाह उसको किताब दे, वल हुक्म, और उसको फहम दे, वल नबूवत, और उसको नबूवत दे, सुम्मा यकूल लिन्नासि कुनू इबादन ली, फिर वो लोगों से ये कहे हो जाओ मेरे बंदे। ये नहीं हो सकता है। मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह को छोड़कर अपनी पूजा पाठ नहीं कराएगा वो। जो हुकूमत की जिम्मेदारी ले रहा है, वो कभी ये कह सकता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं पीएम हूं, मैं ये हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं? कभी कह सकता है वो?
نہیں کہہ سکتا ہے, کیونکہ جو عہدہ اس کو دیا گیا اسی عہدے پر رہے گا, وہ بادشاہی عہدہ نہیں لے سکتا ہے. تو جس کو اللہ نبی بنا رہے ہیں, جس کو نبوت دی جا رہی ہے, بھلا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں خدا ہوں, تم میرے بندے ہو؟ نہیں. وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, پھر کیا کہے گا وہ؟ قرآن خود ہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بلکہ وہ لیکن یہ بات کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے ہو جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. سارے پیغمبروں نے اپنی امت کو یہی دعوت دی ہے, لوگو لا الہ الا اللہ تفلحو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو, لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. انہوں نے لا الہ اپنا نام نہیں لیا, اس میں الا اللہ کہا ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سب کا سبق یہی تھا, تم اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ تمہیں کامیابی مل جائے گی, تم دین سے جڑ جاؤ, تم صحیح معنوں میں اللہ اپنے رب کو رب ماننے والے بن جاؤ. تو فرمایا وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, اور لیکن وہ یہ کہے گا, یعنی وہ نبی, وہ پیغمبر, وہ رسول یہ بات کہے گا کہ ہو جاؤ اللہ والے, بن جاؤ اللہ والے. بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ, بوجہ اس کے کہ تم کتاب کو سکھلاتے ہو, بوجہ اس کے کہ تم کتاب کو سکھلاتے ہو. وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, اور بوجہ اس کے تم خود کتاب کو پڑھتے ہو. تو اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہو گئی, یہ بات واضح کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, ان سے نافرمانی نہیں ہوتی. نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی ہے. جب ان سے نافرمانی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات کہ تم میرے بندے بن جاؤ؟ یہ نافرمانی اللہ رب العزت جب ان کے اندر سے یہ مادہ ہی نکال دیا کہ وہ نافرمانی نہیں کریں گے, وہ معصوم ہے. یہاں پیغمبروں کی عصمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اس آیت میں حضرات مفسرین نے لکھی ہے بات, اس لیے نبی معصوم ہوتا ہے, اس سے خطا نہیں ہوتی, اس سے کوئی نافرمانی نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے اس سے بات بھی واضح ہو گئی کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو خدائی درجہ دے رکھا ہے, اس آیت سے ان کے اوپر بھی رد ہے کہ تم نے انہیں خدا بنا رکھا. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جسے ہم نے نبوت دی, کتاب دی, فہم دی, وہ کبھی یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا ہے, تم نے کیسے انہیں خدا مان لیا ہے؟ یہ بھی رد ہو گیا ان کے اوپر. اور دنیا کے اندر جو بھی اللہ کو چھوڑ کر جس اپنی طرف کسی کو بلا رہا ہو اپنی عبادت کے لیے, تو وہ نہ ولی ہو سکتا ہے, نہ قطب ہو سکتا ہے, نہ ابدال ہو سکتا ہے, وہ شیطان ہو سکتا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہو اور جو کام اللہ کی جو صفت ہے وہ صفت اپنے آپ کو قرار دے رہا ہو. اس سے بات بھی واضح ہو گئی ہے. آگے فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ, فرمایا اور نہ یہ بات بتلائے گا وہ پیغمبر, وہ نبی, وہ رسول کہ تم بنا لو فرشتوں کو, کہ تم فرشتوں کو, أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ, کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب قرار دے لو. وہ یہ بات بھی نہیں کہے گا, وہ بات یہ نہیں کہے گا. اس لیے جن لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی قرار دیا ہے نعوذ باللہ, وہ بھی کان کھول کر سن لے کہ انہیں کس نے حکم دیا ہے, کس نے بات بتائی ہے. اور جو نبیوں کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے جن لوگوں نے, وہ بھی کان کھول کر سن لے, کسی نے ان کو حکم نہیں دیا, نہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے, یہ پیغام ہے, اپنی من مرضی چل رہا ہے کام. فرمایا آیا امرکم بالکفر, کیا تم کو وہ بتلائے گا کفر کی بات؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو رب قرار دینا یا نبیوں کو رب قرار دینا, یہ تو کفر کی بات ہے. اور کفر کی بات تو کوئی نہیں کہے گا, یعنی جو پیغمبر ہوگا وہ تو کہے گا ہی نہیں. جو حکومت کا کارندہ ہو وہ حکومت کے خلاف کیسے چل سکتا ہے؟
कैसे हुकूमत के खिलाफ बगावत कर सकता है? हुकूमत तो उसे जेल खाने में डाल देगी, उसको भेजेगी नहीं अगर उसके बारे में मालूम होगा कि ऐसा करेगी। और अल्लाह तो आकमुल हाकिमीन है, वो तो सब चीज जानता है, दिलों की, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो तो रग रग से वाकिफ है, पल पल से की खबर रखता है। भला उसके वो थोड़ा ही, अल्लाह से खता थोड़ा ही हो सकती है, बंदों से तो हो सकती है, लेकिन अल्लाह से खता नहीं हो सकती। वो गलत किसी को ओहदा दे दे, गलत ओहदा नहीं देगा अल्लाह। फरमाया बाद इज़न तुम मुस्लिमून, बाद इसके कि तुम मुसलमान हो। यानी पहले वो ये कहे कि तुम अल्लाह को रब को करार दो, यानी वो पैगंबर आने के बाद पहले क्या कहे, मैं नबी हूं, मैं पैगंबर हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है, ये किताब है अल्लाह की तरफ से, तुम अल्लाह की इबादत करो। पहले वो ये बात कहे और फिर बाद में कह दे कि तुम मुझे भी मानो। नहीं, शिर्क और नबूवत दोनों जमा नहीं हो सकते हैं। शिर्क और नबूवत दोनों जमा नहीं हो सकते हैं, ये आयत बतला रही है। बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, मुसलमान होने के बाद कोई आदमी कुफ्र करे, मुसलमान होने के बाद फिर कुफ्र भी करे, तो या तो वो काफिर होगा या फिर मुसलमान होगा। दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती कि काफिर भी हो और मुसलमान भी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो काफिर रहेगा फिर, या फिर मुसलमान रहेगा। जो दावत दे रहा हो मुसलमान होने की, वो कुफ्र की दावत नहीं दे सकता है। और जो कुफ्र की दावत दे रहा हो, वो बहुत मुश्किल है कि मुसलमान होने की दावत दे। आगे फरमाया, अगली आयत भी कर दे। आगे फरमाया, देखो अगली आयत ये बात बतलाना चाहती है। अगली आयत में अल्लाह ताला ये बतलाना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबियों से ये करार लिया था कि जिसको किताब दी जाए, हिकमत दी जाए नबियों को, फिर किसी के पास कोई पैगंबर आ जाए तो तुम उसकी मदद भी करना और उस पर ईमान भी लाना। अल्लाह ने सारे पैगंबरों से ली थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कलाम पाक में 3 मर्तबा बंदों से सिर्फ एक अहद नहीं, 3 अहद लिए हैं, 3 करार लिए हैं। एक तो वही अहद, वही करार, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये तो बिल्कुल जड़ की बात है। ये तो क्या है भाई, अल्लाह रब है, ये क्या है? जड़। हर इंसान कहता है इसको अल्लाह रब है। रब, आप गैरों से पूछेंगे वो भी कहेंगे भाई रब कौन है, वो भी कहेगा ऊपर वाला। ऊपर वाला इशारा करेगा आपको कि रब तो वो है। सब ये बात कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक अहद बंदों से ये लिया था, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अलस्तु बि रब्बिकुम। तो सबने बैक जबान होकर ये बात कही थी, क्यों नहीं, आप तो हमारे रब हैं, आप तो हमारे रब हैं, ये सब ने कहा था। और ये इंसान, खुदा की तमाम जितने भी इंसान हैं, खुदा की हस्ती रबूबियत का आम्मा पर एतकाद रखते हैं। सब एतकाद रखते हैं कि रब तो अल्लाह है भाई, पालने वाला अल्लाह, खिलाने वाला अल्लाह, मारने वाला अल्लाह, जिंदा करना, सब जानते हैं इस बात को। आगे फिर दूसरा अहद ये लिया था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगंबरों से और सब लोगों से, कि अहले किताब के उलमा से ये लिया था अल्लाह ताला ने दूसरा अहद, कि वो हक को नहीं छुपाएंगे, वो हक को नहीं छुपाएंगे। वही अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा लतुबय्यिनन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनह, तुम हक को नहीं छुपाओगे। सबने कहा जी नहीं छुपाने के लिए। एक दूसरा अहद। तीसरा अहद ये जो अब ये आयत है कि अगर कोई पैगंबर किसी की जमाने में आ जाए तो तुम्हें सबको उस पर ईमान लाना पड़ेगा, उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो सबने कहा था कि जी हम इकरार करते हैं इस बात का, हम सब इकरार करते हैं इस बात का। उसको कलाम पाक में फरमाया, वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है और वो जिक्र के काबिल है जब अल्लाह ने लिया मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से अहद व पैमान, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन, इस बात का कि मैं तुमको किताब दूं और हिकमत दूं, व हिकमतिन और हिकमत दूं, सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा, फिर तुम्हारे पास आ जाए कोई रसूल, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, वो सच्चा बताता हो
तुम्हारी किताब को, तुम्हारी नबूवत को, तुम्हारी किताब को अगर वो सच्चा बताता है, लतुमिनुन्ना बिही, तो तुम्हें उस पर ईमान लाना जरूर भी जरूर। ये ताकीद का जुमला है, लतुमिनुन्ना बिही, तुम्हें जरूर भी जरूर उस पर ईमान लाना पड़ेगा। और तुम्हारा दिल चाहे नहीं चाहे अपनी नबूवत को छोड़कर उसकी नबूवत का इकरार करना पड़ेगा। भला जब पैगंबरों से इकरार लिया है, तो मैं अगर पहली शरीयत को मानता हूं, तो इस शरीयत में अगर मैं पैदा, मेरे पास दूसरी शरीयत आ गई, नबी आ गया हो, तो मेरी क्या हैसियत है? जब अल्लाह पैगंबरों को उनका ओहदा हटा करके, वो यानी हटाने का मतलब ये कि वो ओहदा उनका वही है, लेकिन उनके दूसरे ओहदे में उन्हें ले जाया जा रहा है, तो मेरी और आपकी क्या हैसियत है? फिर ये यहूद और नसारा ये क्यों हटदरी पे तुले हुए? जब इनके पैगंबरों से बात ली गई है कि तुम्हें मानना पड़ेगा। और बाद मुफस्सिरीन तो कहते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे पैगंबरों को बुला करके यूं कहा था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हबीब अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तो तुम्हें सबको उसके ऊपर ईमान लाना पड़ेगा और उसकी मदद करनी पड़ेगी। और यही मतलब यहां कुरान करीम का असल यही है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु मुफस्सिर कुरान है, जब उनका कौल आता है तो सारे कौल फिर पीछे हट जाते हैं। और बात असल यही है, अल्लाह ने सारे पैगंबर 1,24,000 सवा लाख कम बेश पैगंबरों से ये बात कही थी, अगर मेरा हबीब किसी की जिंदगी में आ जाए तो तुम्हें ईमान लाना पड़ेगा, उसकी नबूवत को तस्लीम करना पड़ेगा, उस पर उसके कलमे को मानना पड़ेगा और उसकी मदद भी करनी पड़ेगी। अब ये बात जहन में रखो जो मैंने आखिर में बतलाई आपको, और कुरान करीम सुनो, देख कैसा समझ में आता है। सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा, तुम्हारे पास आ जाए रसूल, रसूल से मुराद यहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसद्दिकुल लिमा माकुम, जो तस्दीक करता हो, सच्चा बताता हो उसको जो तुम्हारे पास है। हमारे पैगंबर ने क्या कहा है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुली, हम सारे पैगंबरों पर, सारे नबियों पर हम ईमान लाते हैं। उसमें तौरात भी आ गई, इंजील भी आ गई, हमारा कुरान सबको सच्चा बताता है, हम उसे सच्चा कहते हैं। वो अगरचे हमारे कुरान को, हमारी नबी की इस किताब को, कुरान को झूठा बताते हैं, लेकिन हम उनकी किताब को सच्चा कहते हैं। तो इसलिए उनसे कहा गया अगर तुम्हारे पास आ जाए और वो सच्चा बता रहा हो तुम्हारी किताब को, ये बताया उनको, लतुमिनुन्ना बिही, तो जरूर भी जरूर उस रसूल पर एतकाद भी लाना, वला तंसुरन्ना, और उसकी मदद भी करना, उसकी तरफदारी भी करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम तो उस नबी की उम्मत है, वाकई हमें तो फख्र करना चाहिए, जिस नबी की उम्मत में आने के लिए पैगंबरों ने दुआएं की और फिर पैगंबरों से इकरार भी लिया। पैगंबरों की भी तमन्ना थी, अल्लाह ने उनकी तमन्ना के बावजूद फिर भी यूं कहा कि कहीं आगे जाकर के डिफेक्ट ना आया, तुम्हारी उम्मत ये ना कहने लगे कि हम नहीं मानते, हम तो नहीं मानेंगे। घर का जब बड़ा किसी को मान लेता है ना, तो औलाद को माननी पड़ती है नहीं बात, तो सब जानते हैं। तो पैगंबरों से बड़ा कौन हो सकता है, उम्मत तो छोटी है। तो जब पैगंबरों से इकरार ले लिया, और पैगंबरों ने क्या कहा, अल्लाह ने कहा काल आकर तुम, क्या तुमने इकरार किया इस बात का? सारे पैगंबरों को बुला करके तुमने इकरार किया इस बात का? वाखज तुम अला ज़ालिकुम इसरी, तुमसे अहद लिया और इस पर मेरा अहद तुमने इस शर्त पर कबूल कर लिया। तो सबने क्या कहा? कालू अकररना, सबने क्या कहा? हम इकरार करते हैं, आपकी बात को मानेंगे, अगर हमारे पास, अगर हमारी जिंदगी में आ गए तो हम उन पर ईमान लाएंगे। मान लिया सबने, तो फिर यहूद क्यों नहीं मानते? मालूम ये होता है ये सही मानों में उनके उम्मती है ही नहीं। मालूम ये होता है कि सही मानों में ये उम्मती है ही नहीं। भाई जब बाप बैठ रहा है तो औलाद को क्या दिक्कत आ रही है? तो इस वजह से इन्हें यहूदियों को समझनी चाहिए बात, यह आयत समझनी चाहिए, और नसारा को समझनी चाहिए बात
क्यों अपनी हरदर्मी पर तुले हुए हैं? इन्हें तस्लीम करनी चाहिए अपनी इस बात को, उन्हें तो डबल सवाब मिलेगा। कुरान कहता है कि उसके लिए दोहरा सवाब है जो पहले नबी पर भी ईमान लाया और दूसरे नबी पर भी ईमान लाया हो। आगे फरमाया क़ालू अक़रना, उन्होंने कहा, वो बोले सब हमने इकरार किया। क़ाल फ़शहदू, अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाया, तुम गवाह रहना, अब गवाह हो जाओ। यानी असल में जब ये कहते हैं ना किसी को, भाई तुमने माना कि जी हाँ माना, अब फिर देख लिए कि यार नहीं सही है, तुम गवाह हो इस बात के कि जी हाँ हम गवाह हैं। तो पैगंबरों से जब ये कहा गया तुम मानोगे कि जी हाँ मानेंगे, कि तुम सही गवाह हो कि जी हाँ गवाह है, तो अल्लाह ने क्या कहा? व अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं, कल मैं भी गवाही दूंगा इस बात की तुमने इकरार किया था। अल्लाह अकबर। ये है कुरान, बिल्कुल जो खरे का खरा और खोटे का खोटा बिल्कुल आपको छांट कर दे दिया कुरान करीम ने। कहीं जाने की जरूरत नहीं है कुरान को छोड़कर, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कुरान से पूछो और अपनी सही मजहब को तस्लीम करो और फख्र करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें आज इस मजहब में पैदा किया है। वाकई अगर हम उनमें होते कितना मुश्किल हो जाता इस मजहब में आने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आने बैठने को और कहने सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। इस सबक से अल्लाह हमारे ईमान में, आमाल में मजबूती अता फरमाए।